Hey class, hello everyone. Hi, hello, namaste, adab, sat sri akal, assalamu alaikum, vanakkam, khamma gani to all of you, and welcome to today's session. And as you all know, today we are starting the topic constructions, right? So this is the topic for your CBSE grade 9 under your Umang series, and today we'll be talking about making different angles with your compass and your scale and a pencil, right? So these are the three things which we are going to use today to draw any angle. Not any angle, only some particular angles we can draw from it. So I'll tell you what are the angles and how to approach those angles. So before I start, I feel that many of you must be facing the problem where you are facing the difficulty ki sir, where my doubts are not being solved, I'm getting neglected, or I'm not getting the notes at the proper time, या फिर test or assignments are not happening at the regular interval, so I'm not feeling much confident about my examination. Or कि sir, okay sir, school part is done, but from where I can go and prepare for NTSE or KVPY or Olympiads, okay? Or कि sir, this timing is not good for me, can I do it in some other time? एंड सपोज लाइक कि सर ये लैंग्वेज सही नहीं है, वो नहीं है, तो अब ये सारी प्रॉब्लम्स होती है एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम्स इन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे या कहीं ये भी मिलना बहुत मुश्किल होता है. But here at Vedantu, all these problems will be solved. You will be getting unlimited live classes. All the micro courses, that means the chapter wise specific courses, will be available free to you. So you can learn any chapter whatever number of times you want. Okay, जितनी बार देखना है देख लो कोई भी चैप्टर को. Crash courses will be also there, so you can, so that before the examination crash course will be held and your revision will also be done for that. समझ रहे हो? Performance reports will be given to you so that you can track your progress with the regular examinations and regular test and personalized attention, so that none of your doubts will be left unclear. Okay, so these are all the features. To know more about it, you need to go to the link vdnt.in/ytpro. अब उस लिंक पे जाओगे बेटा, सो यू नीड टू फर्स्ट सेलेक्ट योर ग्रेड 10th, देन सॉरी फर्स्ट यू नीड टू सेलेक्ट योर ग्रेड 9, है ना? तुम लोग तो ग्रेड 9 के हो, तो भैया ग्रेड 9 सेलेक्ट करो, देन सीबीएसई 2021 सेलेक्ट करो, एंड फिर ये गेट सब्सक्रिप्शन जो है उस पर क्लिक करो, राइट? तो आफ्टर दैट you will be getting, देखो this page will come. So now you have an option to go for 1 month, 3 months or 6 months, whatever you want. I personally suggest कि यार 3 months or 6 months is the best part, so that you can learn more. 6 months करोगे तो बहुत अच्छा है, so that एक firm preparation हो जाएगी, एक strong preparation हो जाएगी. समझ रहे हो? तो अब देखो बेटा, if you check for suppose 1 month, the price shown will be 2699. अब अगर तुमको डिस्काउंट चाहिए, इफ यू वांट डिस्काउंट, देन अप्लाई द कूपन कोड GP Pro. कहां पे लगाओगे? यहां पे. ओके, व्हेन यू अप्लाई द कूपन कोड GP Pro, यू विल बी गेटिंग एन डिस्काउंट ऑफ 15%. 15% डिस्काउंट मिल जाएगा एंड क्विकली यू विल बी रिडायरेक्टेड टू दैट पार्ट. ओके, then same way for 3 months the price again will get reduced by 15% अगर कूपन कोड लगाओगे GP Pro, and same for 6 months also 15% discount. ठीक है? The more number of months you will choose, the less will be the price per month. So whatever suits you best, you are best, you are all welcome to join us on the Vedantu's platform. There, this fees, suppose 6 months you are taking, this includes maths, physics, chemistry, biology, social science and English. All the subjects will be included in this part. तो ऐसा नहीं है कि if you are using GP Pro तो खाली maths, नहीं. Everything will be available to you. Okay, everything will be unlocked in this part. So all of you who can join this part, you can definitely check this out link and the coupon code GP Pro. ठीक है बेटा, तो let's talk about now that what we are going to do today. So we will be starting with the construction. तो construction क्या होता है बेटा कि drawing different shapes, angles and lines accurately, right? So to draw some figures we need some basic geometrical instruments. तो एक geometry box होना चाहिए, सिंपल सी बात है ना? तो but today for drawing angles we'll be using only a compass, scale and a pencil. तीन चीजें बस यूज करेंगे. ठीक है बेटा, तो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक कंस्ट्रक्शन फॉर द बाइसेक्टर ऑफ एनी गिवन एंगल. बाइसेक्टर ऑफ गिवन एंगल का क्या मीनिंग है बेटा? दैट सपोज इफ आई हैव गिवन यू दिस एंगल, राइट? नाउ इफ आई ड्रॉ अ लाइन इन बिटवीन सच अ वे कि दिस लाइन डिवाइड्स दिस एंगल इन टू इक्वल पार्ट्स, सो दिस इज कॉल्ड बाइसेक्टर. बाइसेक्टर ऑफ एंगल, और यू कॉल इट एंगल बाइसेक्टर, राइट? तो once if we'll understand the construction of angle bisector clearly, बहुत इजी हो जाएगा सब कुछ.
समझ रहे हो? रेस्ट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी इजी, रेस्ट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी इजी. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन, लेट्स अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ एंगल बाइसेक्टर. तो बेटा देखो उसमें क्या करोगे, लुक एट दिस वीडियो हियर. तो फर्स्ट थिंग कि भैया यू नीड टू ड्रॉ एन एंगल, है ना. तो सपोज कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लो, राइट, एक लाइन ड्रॉ कर लिया, एंड एट एनी एंगल ड्रॉ वन मोर लाइन. सो दिस इज योर नाउ एंगल, दिस इज नाउ योर एंगल. ठीक है. नाउ व्हाट यू नीड टू डू is you need to take your compass and open to any significant length you want. कोई भी लेंथ पे ऐसा खोल दो कंपास को लेके. ठीक है. कंपास को खोल के बेटा ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट कहलाता है जहां पे दोनों रेज मिलती है ना, दो रेज जहां से निकलती है एंगल की, दैट पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स. तो कंपास को रखो तुम वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल, है ना, इस वर्टेक्स पे कंपास को रखा, खोला और ये कट किया. कंपास को देखो ध्यान से, क्या क्या है बेटा, हम लोगों ने कंपास को वर्टेक्स पे रखा है. देखो कंपास को वर्टेक्स पे रखा, अब इसको थोड़ा सा ओपन किया, है ना, जितना भी ओपन, कोई भी लेंथ पे ओपन कर सकते हो, कोई मेजर की जरूरत नहीं है. और ओपन करके बेटा एक कट कर लो दोनों लाइंस पे, दोनों रेज पे इसको कट करना है. ठीक है, दोनों रेज पे अपने को इसको कट करना है. तो देख लो एक बार वापस, भाई पहले एक एंगल बना हुआ है हमारे पास में, हमने कंपास लिया, वर्टेक्स पे रखा और एक कट मारा दोनों लाइन पे. ठीक है. अब उसके बाद में बेटा देखो जब कट मारा है तो तुम लोग ये देख पा रहे हो क्लियरली कि यार इस लाइन को ये कट यहां पे कट कर रहा है ना. ये जो आर्क किया है अपन ने, जो आर्क मारा है बेटा इन दोनों लाइंस के ऊपर, ये आर्क इस लाइन को यहां इंटरसेक्ट कर रहा है एंड यहां पे, ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. अब क्या करोगे बेटा, कंपास को ले जाओ, है ना, और ये जो टिप ऑफ द कंपास जो है ना, अब एक बार यहां रखोगे और दूसरी बार यहां रखोगे और दो और आर्क मारोगे जो कि इंटरसेक्ट करेंगे. तो क्या किया, एक बार यहां कट किया, ठीक है, और दूसरी बार यहां कट किया, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिला ना दोनों कट का. इस इंटरसेक्शन पॉइंट को वर्टेक्स से मिला दो. ये इंटरसेक्शन पॉइंट को अपन ने वर्टेक्स से मिला दिया और ये हो गया तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर. ठीक है. दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ योर एंगल बाइसेक्टर. ये एक मेथड होता है बेटा एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने का. ठीक है. कोई भी एंगल with this method you can divide it into two equal parts. ठीक है. तो अब एंगल बाइसेक्टर बेटा अगर एक बार और समझ गए, अच्छे से समझ गए, उसके बाद में एक और चीज बताऊंगा कि हाउ डू यू ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. 60 और 120 बताऊंगा. उसके बाद में देखो सारे एग्जाम एकदम तड़ातड़ होते जाएंगे. ओके, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. ठीक है. सो दिस हाउ यू कैन ड्रॉ एनी एंगल बाइसेक्टर. ऑल्दो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देयर आर नो मार्क्स फॉर राइटिंग स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, और लिखना भी है तो नॉर्मल तरीके से जो करते हैं बेटा वही लिखना होता है. ठीक है. अब देखो ध्यान से यार, अब कैसे 60 डिग्री का एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे. तो 60 डिग्री के एंगल का कंस्ट्रक्शन देखो एक बार कि भाई फर्स्ट थिंग एक लाइन ड्रॉ करो. ये लाइन ड्रॉ करी, ठीक है बेटा. नाउ ये कंपास लोगे, टिप ऑफ द कंपास को रखो ये एक पॉइंट पे, कंपास को ओपन किया और अपने को ना ये कट मारना है, पूरा सेम वही कट मारना है. ठीक है. एक पूरा कट मारा. अब ध्यान रखना बेटा यहां पे बिना चेंज अपने को ना, वॉट एवर कट यू हैव मेड, नाउ यू कैन नॉट चेंज द कंपास एक्सटेंशन, है ना, जितना तुमने कंपास को ओपन किया है ना उसको चेंज नहीं कर सकते. जितना कंपास रखा हुआ है तुमने उसको ओपन करके रखा हुआ है, सेम लेंथ यू हैव टू कीप इट फिक्स्ड. एकदम फिक्स रखोगे और फिक्स करके अभी जो टिप ऑफ द कंपास है ना बेटा, इसको ये पॉइंट पे ले आओगे, लाइन पे जहां इंटरसेक्ट किया उसने, यहां ले आए और एक और कट मार लो. ठीक है. अब ये कट, ये दोनों आर्क जो इंटरसेक्ट हुए हैं, ये जहां पे दोनों आर्क इंटरसेक्ट हुए हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ जोड़ लो जहां पे तुमने शुरुआत में वो जो पॉइंट कंपास, टिप ऑफ द कंपास जहां रखा था, इसको जोड़ दिया तो तुमको मिल गया 60 डिग्री का एंगल. इसको जोड़ दिया तो तुमको मिल गया अपना एंगल ऑफ 60 डिग्री. ठीक है. ये तुम्हारा एंगल ऑफ 60 डिग्री है. वापस देख लो एक बार, भाई एक लाइन ड्रॉ करी, ओके, एक पॉइंट पे कंपास को रखा और एक आर्क दिया, एक आर्क मारा. ये आर्क और ये लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, wherever these two are intersecting, put your tip of the compass over there, keep your tip of the compass over there, and एक और आर्क करो. ये एक और आर्क किया. ठीक है. नाउ दीज टू पॉइंट्स, जो दो पॉइंट्स है इन दोनों को मिला दो, ये हो गया तुम्हारा 60 डिग्री. ये हो गया तुम्हारा 60 डिग्री. ठीक है बेटा, इजी है. तो 60 डिग्री भी देख लिया हम लोगों ने, एंगल बाइसेक्टर भी देख लिया. एक बार एंगल बाइसेक्टर भी वापस देख लो, क्योंकि उसके बाद में तो मैजिक होने वाला है. ओके. कोई भी एक एंगल लाइन खींच लिया, कंपास को लेके आए और एक कट मारा. ये कट मार के दिस आर्क वेरेवर इट इज इंटरसेक्टिंग बोथ द लाइंस, ये जो आर्क है जहां भी इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे भी टिप ऑफ द कंपास रखेंगे और दो कट और मारेंगे आगे. वी विल मेक टू मोर आर्क्स व्हिच शुड इंटरसेक्ट ईच अदर.
तो जहां पे ये दोनों आर्क ने इंटरसेक्ट किया, बस ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला बेटा, इसको ज्वाइन इट विद द वर्टेक्स और ये बन गया तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अब ना 60 डिग्री कैसे ड्रॉ करेंगे भाई? 60 डिग्री तो अपन ने ड्रॉ कर दिया यहां पे, राइट? अब 120 डिग्री कैसे ड्रॉ होगा? 120 डिग्री कैसे ड्रॉ होगा? तो बेटा सेम थिंग कि पहले तुम लोगों ने मान लो एक लाइन ली, लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, फिर तुमने यहां पे कंपास खोल के, ठीक है, कंपास खोल के तुमने मान लो, छोड़ो एक मिनट, ये कंपास ओपन करके बेटा मान लो कि तुमने ये आर्क ड्रॉ करा है, ठीक है, ये आई विल रिमूव दिस पार्ट, ऐसा आर्क ड्रॉ किया बेटा, ठीक है। अब कीपिंग द सेम कंपास लेंथ को सेम रखते हुए तुम लोग एक यहां पे ड्रॉ करोगे, तो ये फर्स्ट कट जो होगा बेटा, ये लाइन तुमको क्या देगा? 60 डिग्री। याद है अभी बताया, फर्स्ट कट तुमको दे रहा है 60 डिग्री, तो ये जो एंगल मिला है ना बेटा यहां पे, ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। सेकेंड एंगल में बेटा अब देखो, कंपास लेंथ को चेंज, बिना चेंज किए हुए, विदाउट चेंजिंग द लेंथ ऑफ योर कंपास, यहां से यहां पे जो कट मारा था, नाउ यू विल कीप योर टिप ऑफ द कंपास ओवर हियर, यहां पे तुम टिप ऑफ द कंपास रखोगे, ठीक है, ये यहां पे, ये जो पॉइंट है यहां पे टिप ऑफ द कंपास रखोगे और एक और कट मारोगे ऑफ द सेम लेंथ पे एक और कट मारो यहां पे, ठीक है। तो अगर यहां से यहां 60 है तो ये से ये एक और 60 हो गया, तो टोटल एंगल जो हो गया बेटा, ये टोटल एंगल, ये जो पूरा एंगल हो गया बेटा, ये दिस टोटल एंगल, ये जो पूरा एंगल होगा ये हो जाएगा 120 डिग्री, राइट। और ये इतना सा एंगल जो है, ये रेड वाला पार्ट, ये तुम्हारा हो जाएगा 60 डिग्री। अब अगर एक और कट मारोगे, सेम कंपास लेंथ को सेम रख के बेटा, यहां पे टिप ऑफ द कंपास रखोगे अब की बार इस पॉइंट पे, ठीक है, अब इस पॉइंट पे टिप ऑफ द कंपास रखा, और अगर एक और कट मारोगे तो वो जो नेक्स्ट कट मीट करेगा बेटा, वो कहां कट करेगा? वो मीट करेगा तुमको 180 डिग्री पे, देख लो स्ट्रेट लाइन आएगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री, ठीक है। सो इफ यू मेक वन फुल सेमी सर्कल, इफ यू मेक one full semicircle, okay, on one end of a line, and then keeping the compass length same, जो first cut if you will make, that will be 60 degree, keep the tip of the compass at that second point, other cut will give you 120 degree and other cut will give you 180 degree, so 60 60 60 है ना, तो 60 60 plus 60 120, 120 plus 60 180, got it? So this is how you can draw the angles of 60 degree and 120 degree. अब देखो बेटा, once if we have understood this, now see how I'm going to show you the magic कैसे दिखाने वाला हूं, okay? तो देखो बेटा भाई, suppose I have this line over here, okay, you just have the feeling ले लो, बस हो जाएगा काम, okay, you just have this feeling कि बेटा देखो, suppose if this is my line, okay, suppose this is the line which I am drawing here, okay, now what I'll do, I will draw a semicircle, है ना, तो semicircle का function I don't have here, so I am making it a small big, okay, ठीक है, got it? So I am removing this part because we don't need it, अगर होगा भी तो कोई problem नहीं है, okay, even if it is there, no problem in that. So now as you know that if I, whatever is the compass length I have taken here, okay, whatever is the compass length I have made to draw this arc, whatever is the compass length, if I make my first cut, if I make my first cut, that will give me 60 degree. If I keep the tip of the compass over here and if I make my second cut, it will give me 120 degree, and if I keep the tip of the compass here and if I make it at the third cut, this will give me 180 degree. Okay, so let's draw it. This is your 60 degree, okay, this is your 120 degree, and this is your 180 degree. Got it? विदाउट एनीथिंग, तो बेटा अगर कुछ नहीं ड्रॉ किया हुआ है तो ये तुम्हारा 0 डिग्री हो जाएगा, दिस इज योर 0 डिग्री, ओके, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 120 डिग्री एंड दिस इज 180 डिग्री, राइट? अब just now we have learned that how to draw the angle bisector, just now we have learned that how to draw the angle bisector. तो बेटा if I draw an angle between this 60 and 30, this 60 डिग्री वाला जो एंगल है ना बेटा, if I draw the angle bisector of this angle of 60 degree, so what will happen beta? How to draw it? I will say sir, I will not change the compass length, है ना, whatever is the compass length I am not changing it. Now onwards I will not change the compass length.
keeping the compass length same, if I make one cut over here and keep the tip of the compass over here and if I make the other cut over here, ऐसे अगर बेटा दो कट मारूंगा मैं, if I will make two such cuts, है ना, one like this and one like this, keeping the tip of the compass same. So now the angle which we will be getting here, this angle will be what? Between 60 and 0 degree. So between 60 and 0 degree, which angle do you have? You have the angle of 30 degree, right? Now suppose between 60 and 120, if I draw the angle bisector between 60 and 120, तो बेटा देखो क्या करोगे यार, एक कट यहां मारेगा, दूसरा कट यहां मारेगा, राइट? सो ये जो एंगल बनेगा बेटा, दिस एंगल, व्हाट विल बी दिस एंगल? तो ये एंगल देखो बिटवीन 120 एंड 60 डिग्री, ये एंगल कहां है बेटा? बिटवीन 60 डिग्री एंड 120 डिग्री. तो 60 और 120 के बीच में कितना गैप है? 60 डिग्रीज का. तो बीच में कितना हो गया? ये 30, ये 30, तो 60 प्लस 30 कितना हो गया? 90. तो ये वाला एंगल कितना हो गया बेटा? 90 डिग्री. समझ रहे हो? देखो 0 to 30, पहले क्या चले अपन बेटा? 0 to 60, 60 to 120, 120 to 180, तो 60, 60, 60. When I am drawing the angle bisector of these angles, अब यहां पे भी अगर बेटा मैं अगर एंगल बाइसेक्टर ले लूं, okay, here I will make one cut, here I will make another cut, okay, keeping the tip of the compass here, and if I join it to this part, I will get, तो देखो 120 plus 30 कितना हो जाएगा बेटा? 150 डिग्री. So last time between the blue lines the angle was 60, 60, 60. When I drew this red lines as their angle bisector, तो देखो 30, 30 plus 30 60, 60 plus 30 90, 90 plus 30 120, 120 plus 150, 120 plus 30 150 and 150 plus 30 is 180. हो रहा है? Correct? अब I can repeat this process further. I can go even further. Right? Now I will draw angle between each 30 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा बेटा. तो बिटवीन 30 डिग्री, तो देखो यहां पे इंटरसेक्ट किया है, ब्लैक वाले के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है. द ओरिजिनल कर्व जो ब्लैक वाला है ना, उसके साथ इंटरसेक्शन पॉइंट, तो एक पॉइंट यहां पे, एक पॉइंट यहां पे. सो वंस इफ आई कीप द कंपास ओवर हियर, कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? चलो मान लो यहां कर रहा है, और दूसरी बार में चलो यहां कर रहा है. ठीक है? सो दिस एंगल which I am drawing over here, this angle will be representing between 30 and 15. बेटा क्या करेगा? 15 डिग्री. ठीक है? 30 और 60 के बीच में करना है मान लो, तो ये यहां से एक एंगल ऐसे ड्रॉ किया, एक एंगल बाइसेक्टर यहां ड्रॉ किया. तो लेट अस जॉइन इट. सो इफ आई एक्सटेंड इट फर्दर, तो ये 30 प्लस 15 अगेन बाइसेक्टिंग इट, तो ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री. करेक्ट? एक एंगल यहां ड्रॉ किया बेटा, एक एंगल यहां ड्रॉ किया. ओके, एंगल बाइसेक्टर इफ विल ड्रॉ ये एंड ये, तो ये जो एंगल हो जाएगा 60 प्लस 15 मतलब कि 75 डिग्री. नाउ बिटवीन 19 एंड 120, 90 एंड 120 के बीच में करा बेटा, एक एंगल यहां ड्रॉ किया, अदर एंगल वी हैव ड्रॉन ओवर हियर. इफ विल जॉइन बोथ ऑफ देम, ठीक है, तो क्या मिलेगा? देखो 105 डिग्री. फिर 120 और 150 के बीच में किया, तो ये एक एंगल यहां आया, दूसरा एंगल यहां आया. करेक्ट? सो विल एक्सटेंड इट फर्दर, तो ये एंगल कितना आया? 120 प्लस 15 मतलब कि 135 डिग्री. राइट? एंड बिटवीन 150 एंड 180 अगर इफ आई विल ड्रॉ इट, तो सर वन कट इज ओवर हियर, वन कट इज ओवर हियर. तो इफ आई विल जॉइन दिस पार्ट, आई एम गेटिंग व्हाट? आई एम गेटिंग 165 degree. देख रहे हो? So you started with the gap of 0, 60, 120, 180. Then again when you draw the angle bisector, you got 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180. Now the gap has, since you have drawn angle bisector for all, the gap has decreased to be 30, 30, 30. One more time if you have drawn the gap angle bisector, so now the gap is reduced to 15, 30, 45, 60, 75, 90, ऐसा करते करते पहुंच जाएंगे. ठीक है बेटा? तो it is everything is the game about your this part angle bisector and how do you draw 60 degree and 120 degree. Rest all the angles you can get it. Rest all the angles you can get from this part. तो I have just shown you कि भाई सारे angles कैसे निकलेंगे. Now सपोज 90 डिग्री के लिए बेटा तुमने किया है कि भाई 60 एंड 120 के बीच में एंगल बाइसेक्टर किया. राइट? यू रिमेंबर फॉर 90 डिग्री व्हाट यू हैव डन? यू हैव ड्रॉन एंगल बाइसेक्टर बिटवीन 60 एंड 120.
90 डिग्री कैन बी ड्रॉन इन वन अदर वे ऑल्सो, डिफरेंट वेज भी हैं। तो देख लो थोड़े बहुत एंगल्स के शॉर्टकट कैसे सोचना है। भाई सपोज वन एंगल इज ओवर हियर, है ना। एक एक बात बेटा देखो, मैंने देखा कि भाई सर जी सपोज दिस इज द लाइन ओवर हियर गिवन टू मी, ओके। व्हाट आई डिड कि आई वांट टू ड्रॉ द एंगल ऑफ 90 डिग्री। मेरे को क्या करना है बेटा, एंगल ऑफ 90 डिग्री ड्रॉ करना है। ठीक है सर, तो आई विल डू वन थिंग बेटा कि सपोज इन मिडल में कहीं पे अगर मेरे को ड्रॉ करना है बेटा, मान लो यहां पे कहीं पे, ठीक है, समवेयर ओवर हियर। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कीप माय कंपास, टिप ऑफ द कंपास एट दिस पॉइंट एंड आई विल ड्रॉ वन आर्क, है ना। मैं पूरा इसलिए बना रहा हूं बिकॉज आई डोंट हैव दिस इंस्ट्रूमेंट की सेमी सर्कल बना सकूं, सो आई एम ड्रॉइंग ओनली सेमी सर्कल। ठीक है, तो कंपास को वहां रखा और ऐसे कर लो। अब देखो बेटा, दिस टोटल एंगल यू नो इज 180 डिग्री। ये जो पूरा एंगल है बेटा, ये तुमको पता है ना कि 180 डिग्री है। ठीक है, अब कंपास लेंथ को सेम रख के दो कट मार लो। एक कट यहां आएगा, दूसरा कट यहां आएगा, जहां कहीं भी आ जाए। ठीक है, अच्छा नहीं 180 पे तो करोगे तो फिर तो पूरा वापस यहीं पे इंटरसेक्ट हो जाएगा। छोड़ो, नीचे की साइड में कर लो, या फिर एक काम करो, वंस यू हैव डन दिस पार्ट ना, नाउ तुम लोग ओपन कर सकते हो, क्योंकि ये बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं, 180 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। तो इन एंगल बाइसेक्टर व्हेन यू आर ड्रॉइंग ना, तो यू कैन चेंज दी पार्ट, है ना, कि भाई ये जो कर्व लिया है एंड बाद में जो ड्रॉ करोगे दैट लेंथ यू कैन चेंज, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो लेंथ, कंपास लेंथ को थोड़ा बड़ा करो और एक कट यहां मारो, दूसरा कट यहां मारो, वेर एवर दीज टू आर इंटरसेक्टिंग, इसको ज्वाइन करोगे तो डायरेक्टली 90 डिग्री भी मिल जा रहा है। समझ रहे हो, डायरेक्टली 90 डिग्री भी मिल जाएगा। वरना दूसरा मेथड क्या है बेटा, जो मैंने बताया है, फर्स्ट 60 डिग्री, वन कट ऑफ 60 डिग्री, other cut off. When you are doing by this method, you cannot change the compass length, है ना। When you are doing by this method, you cannot change the compass length. तो one cut off 60 degree, then of 120 degree, and then the angle bisector between 90 and 60. ठीक है, तो थोड़े इंपॉर्टेंट एंगल्स होते हैं, इनको भी देख लेना। तो भाई कैसे करोगे इन दैट केस, तो सपोज हियर यू नीड टू ड्रॉ, तो फर्स्ट थिंग वी विल ड्रॉ द so first we will draw, keep the tip of the compass and we will draw a arc. ठीक है बेटा, so we have drawn this arc, got it। अब after drawing this arc, देखो if I take one angle, first angle it will be 60, second part if I will take it will be 120. Now without changing the compass length, make one cut over here, another cut over here, so directly you will get to know that this will be your angle of 90 degree। समझ रहे हो, डायरेक्टली मिल जाएगा कि ये जो एंगल है बेटा, दिस एंगल इज 90 डिग्री, करेक्ट। अब देखो 90 डिग्री ड्रॉ कर लिया बेटा, देखो इसमें 45 वाज बिट लेंथी। कैसे, फर्स्ट यू हैव ड्रॉन 60, देन बाइसेक्टर ऑफ 60 एट 30 एंड देन द बाइसेक्टर बिटवीन 45। अब अगर तुम्हारे पास 90 है ऑलरेडी, इफ यू ऑलरेडी हैव 90 डिग्री, सपोज कि तुम्हारे पास में ऑलरेडी 90 डिग्री है बेटा, तो ये 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, एंगल बाइसेक्टर जो होगा 90 डिग्री का हाफ क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। तो बस एक टिप ऑफ द कंपास वंस, कीप इट हियर, देन कीप इट हियर, एंगल बाइसेक्टर। नाउ यू आर ड्राइंग एंगल बाइसेक्टर, सो यू कैन चेंज द कंपास लेंथ। तो एक को यहां करो, एक को यहां करो एंड देन जॉइन इट। तो ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, 45 डिग्री। ठीक है, तो जब ये वाले डायग्राम से बना रहे हो ना बेटा, तब देखो व्हेन यू आर मेजरिंग द पार्ट ना, कि ये 60 120 करना जब होगा, 60 120 और 180 जब करना है, that time do not change the compass length with respect of this, ये जो black curve जो लिया है ना उसके पास में। after that all you are drawing just the angle bisector। तो तब तुम लोग चेंज कर सकते हो कंपास लेंथ को, थोड़ा बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, वो चलेगा, कोई बात नहीं, है ना। बट अगर बढ़ाया है तो यहां से यहां सेम रखना है। ऐसा नहीं कि एक जगह पे कट किया तो कुछ और लेंथ, दूसरी जगह पे कट किया तो कुछ और लेंथ, वो नहीं कर सकते। दोनों कट में, दोनों आर्क में सेम कंपास लेंथ रखना है, बट एंगल बाइसेक्टर में चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 45 डिग्री, करेक्ट है। अब एक बात बताओ, मान लो 135 बोला अगर, तो एक बात बताओ यार कि ये जो एंगल है बेटा, ये वाला एंगल तो अपने को पता है ना कि ये वाला जो एंगल है ये 180 डिग्री है। अगर सिंपल स्ट्रेट लाइन खींचूंगा तो ये 180 डिग्री है ना। तो बिटवीन 90 एंड 180 अगर मैं ड्रॉ करता हूं बेटा एंगल बाइसेक्टर, है ना, एक टिप ऑफ द कंपास रखा है यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, एंड अगर ये ड्रॉ किया तो ये एंगल क्या हो जाएगा बेटा, 90 प्लस 45। तो 90 प्लस 45 क्या है, 135 डिग्री है, देखो।
समझ रहे हो? 45 को और अगर डिवाइड करोगे, 45 को अगर और डिवाइड किया तो एक टिप ऑफ द कंपास रखा है यहाँ पे, टिप ऑफ द कंपास रखा है यहाँ पे, करो भाई एंगल बाइसेक्ट, ये किया एंगल बाइसेक्ट, तो ये जो एंगल आ जाएगा कितना आ जाएगा, 45 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 22.5। समझ रहे हो? तो इट जस्ट डिपेंड्स कि भाई कौन से एंगल पे जाना है, चलते जाओ काम होते जाएगा। बस याद रखना बेसिक एंगल जो है हमारे 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, उस टाइम पे डोंट चेंज द कंपास लेंथ। Whenever you are drawing the angle bisector, you can change the compass length, no problem in that. But both the arc meet with the same compass length. That is the only portion. Bas, so this is your beautiful rainbow of angles over here, and these are some of the shortcuts to draw the angles. तो जितना छोटे shortcut में जा सकते हो, try to go in that manner so that your answer becomes very easy. Got it? Okay. तो बेटा चलो, let's do some questions now. ठीक है, पहला question क्या है? कंस्ट्रक्ट द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट 22.5 डिग्री एंड 15 डिग्री करा हुआ है ना। 22.5 डिग्री कैसे ड्रॉ करोगे बेटा, फर्स्ट हम लोग 90 ड्रॉ करेंगे। चला वापस दिखा देता हूं कैसे करोगे बेटा। फर्स्ट एक लाइन ड्रॉ करो, है ना, देन एट दिस टिप ऑफ द कंपास एंगल अपने टिप दिस टिप कंपास से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो, है ना, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया अपन ने, ठीक है, सेमी सर्कल। आफ्टर ड्रॉइंग द सेमी सर्कल बेटा अपने को क्या चाहिए, 22.5 कहां से आएगा, 45 से, 45 से आएगा। तो फर्स्ट अपने को चाहिए 90, 90 से आएंगे 45, 45 से आ जाएंगे 22.5, ठीक है। तो बेटा देखो भाई, फर्स्ट कट जो होगा दैट इज 60, सेकेंड कट विल बी 120 एंड देन एंगल बाइसेक्टर ऑफ दीज टू, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो दिस एंगल बाइसेक्टर विल गिव मी 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री पे खुश नहीं होना है, 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, वी नीड टू ड्रॉ वन मोर एंगल बाइसेक्टर। तो भाई इसका एक कट लो यहाँ पे, एंगल बाइसेक्टर, एंगल लेंथ एडजस्ट कर सकते हो, दूसरा कट लो यहाँ पे, वेर एवर दीज टू आर इंटरसेक्टिंग, ये तुम्हारा हो जाएगा 45 डिग्री, करेक्ट, ठीक है। तो बेटा ये क्या हुआ है 45 डिग्री एंड ये क्या था 90 डिग्री। अब 45 का हाफ करेंगे तो 22.5 यू विल गेट, चलो एक और हाफ करो, तो भाई कीप द टिप ऑफ द कंपास यहां पे एंड दूसरा यहां पे, कट करो 1 2, है ना, यहां से किया ऐसे, यहां से किया ऐसे, जहां भी इंटरसेक्ट किया है ज्वाइन करो विद द हेल्प ऑफ स्केल, और ये मिल गया तुमको तुम्हारा थर्ड पार्ट 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। अब बताओ बेटा 15 पे कैसे जाओगे, तो 15 पे सर पहले 60 मिल गया, 60 बाइसेक्टर विल गिव मी 30, 30 बाइसेक्टर विल गिव मी 15, है ना, इजी है बहुत। तो कैसे करेंगे बेटा, देखो भाई सर जी, फर्स्ट थिंग ड्रॉ द एंगल, ओके, सो दिस लाइन आई हैव ड्रॉन, देन विद द कंपास आई कैन चूज दिस वन पॉइंट ओवर हियर, चलो यहां कर लेते हैं, कोई बात नहीं, बात ज्यादा बड़ा हो गया ना, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं सर्कल को, लेट्स मेक इट बिट स्मॉल, ओके ओके, चलो सर। सो दिस इज द सेमी सर्कल विच आई हैव गॉट, you will be saying sir where is semicircle sir, it is full circle, now it is semicircle, okay. So if I keep the compass length same, to get 60 and 120 and 180 I need to keep the compass length same, so this is 60 degree, correct, I have got 60 degree, so I will say sir this point is going to give me my 60 degree angle, okay sir, so this is 60 degree. Now if I draw the angle bisector of this 0 degree and 60 degree, तो क्या मिलेगा बेटा, तो भैया ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर बिटवीन 60, तो कीप द टिप ऑफ द कंपास, मेक वन कट, कीप द टिप ऑफ द कंपास ओवर हियर, मेक अनदर कट, सो दिस इंटरसेक्शन विल गिव यू द एंगल बाइसेक्टर, सो दिस 60 डिग्री इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, सो ये 0 to 30, तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री। नाउ 30 डिग्रीज एंगल बाइसेक्टर बेटा अगर एक बार और ड्रॉ करेंगे, तो कीप टिप ऑफ द कंपास वन टाइम ओवर हियर एंड देन अदर टाइम ओवर हियर, फ्रॉम हियर मेक वन पॉइंट, ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, करेक्ट, ज्वाइन दिस पॉइंट विद दिस पार्ट, तो क्या बन गया, वी गॉट 15 डिग्री, देखा इजी है। तो मैंने कहा था बेटा एंगल बाइसेक्टर अगर देख लिया और 60 और 120 डिग्री बनाना सीख लिया तो बस, बाकी तो फिर सिर्फ गेम है, एंगल बाइसेक्टर का गेम है, कुछ नहीं है, ज्यादा सोचना ही नहीं है। देखो बहुत लॉजिकल है, इट इज वेरी लॉजिकल, just you need to learn how to draw 60 degree, 120 degree and 180 degree, okay, keeping the compass length same, and then learn that how do you draw angle bisector. After that everything is how you think, different ways you can draw any angle,
बस सोचते रहो, यू विल गेट योर आंसर। ओके, तो देखो मोस्टली वॉट एवर angles they'll ask, ये सारे I have drawn over here. All the angles which they'll ask, they I have drawn over here. Sometimes 22.5 also, तो वो भी बता दिया। अब here if you want to get 22.5 यहाँ पे, तो 22.5 is between 30 and 15. तो इन दोनों के बीच में एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो 30 and 15 15 डिग्री, तो 7.5 7.5, so 15 plus 7.5 is what, 22.5, तो ऐसे भी मिल जाएगा। You can get it from anywhere. Okay, तो mostly in your examination they will give you an angle which is डिविजिबल बाय 15 या फिर एक और मतलब 7.5 लाइक दैट, ऐसे ही मिलेंगे तुमको, उससे ज्यादा और जाने को नहीं बोलेंगे। ओके ठीक है, चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कंस्ट्रक्ट एन इक्विलैटरल ट्राइंगल गिवन इट्स साइड एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। अब देखो बेटा मेन थिंग क्या है, द मेजर पार्ट की सर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल, सर यू वर टॉकिंग अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल इज हियर ओनली, बट इट इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल एंड आई नो इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल all angles are 60 degree, right? तो बेटा what I will say कि चलो sir I have drawn one line over here, okay, let's say I have drawn one line over here, let's say of any given side, तो take it 5 centimeter, whatever you want. On both these sides I will draw an angle of 60 degree ना, दोनों जगहों पे बेटा क्या करूंगा, I will draw an angle of 60 degree. Okay sir, so let us draw the angle of 60 degree on both the sides. So 60 degree, तो 60 degree is very easy by whatever compass length you have taken, keep the tip over here, make one cut, है ना, and here also keep the tip over here, make one cut, correct? तो बेटा from here the 60 degree angle is this one, ये 60 degree है, एंड यहां से जो 60 डिग्री का एंगल है बेटा वो क्या है, ये है, तो दोनों कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दे बोथ आर इंटरसेक्टिंग समवेयर ओवर हियर, तो ये जो होगा तुम्हारा थर्ड पॉइंट हो गया, करेक्ट है बेटा? ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ये ऑटोमेटिकली 60 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट? तो ए बी सी, तो जस्टिफाई कैसे करोगे बेटा, दैट वी हैव ड्रॉन एंगल ए एज 60 डिग्री, एंगल बी एज 60 डिग्री, तो I can say angle A plus angle B plus angle C should be equal to 180 degree, angle sum property. So 60 plus 60 plus angle C is equal to 180 degree. I can say angle C is 180 minus 120, which is 60 degree. So all the three angles are 60 degree. That means triangle ABC is an equilateral triangle. Triangle ABC is an equilateral triangle. बस हो गया काम तुम्हारा, और क्या, nothing else. Okay, so this is how it can be done. Got it? चलो, so this is it बेटा in today's class. Today's class I have kept it in such a way कि तुम लोग आराम से समझ सको कि how it will be done. Now before I go, please visit this link vdnt.in/ytpro और जल्दी से आ जाओ यार, join us on Vedantu's platform so that learning can be interacted. देखो you saw the Vedantu's platform today, तो उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है. Okay, so again I'm telling you, for 1 month, 3 months or 6 months, 15% off using the code GPPro. Okay, so thank you so much. Like करना मत भूलना अगर मजा आया है बेटा. Don't forget to like the video, share the video with your friends and subscribe to the channel if you are new. So this is Gopal Paliwal signing off today. Thank you so much. Bye bye. Good night. Khuda Hafiz. See you soon. Bye bye to all of you. Thank you so much. Bye bye beta.